related to these topics. Very this top. Hello, am I audible? Yes, sir. You are audible, sir. You can The- continue. yes, this topic is a very fundamental topic of real analysis for student of higher mathematics. In the competition exam like IIT JAM, NET, GATE, and BHM TFR, there are always one or two questions related to these topics. Useful for studying the theory of differential equations and integral equation. So there is a request already by Shashank. Please follow the guidelines during the presentation, which is mentioned in the left side of our poster of presentation. So without wasting the time, I would like Mr. Ashok Kumar. I want to just say something about him. Mr. Ashok Kumar has done his BSc and MSc and clear GRF and GATE exams. He has lots of knowledge in analysis and topology. Doing his PhD from Department of Science and Technology, SIMS BHU, in the area of Finsler geometry. So, Mr. Ashok, over to you. Now you can start your presentation. Yes, thank you, Kusan Shashank. Okay, thank वेलकम सर, वेलकम. Yes, sir. Welcome, sir. आपकी आवाज आ रही है सर. You are audible, sir. you. Okay. तो जैसा कि लेक्चर में हमें पहले से तो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हमें पॉइंट सेट टोपोलॉजी पे मैंने देखा बाद में दिखा कि टोपोलॉजी इन आर तो ज़्यादा उम्मीद नहीं रखी है कि हम बहुत ज़्यादा टोपोलॉजी के ऊपर जानने वाले, बट टारगेट ये था कि रियल एनालिसिस में जो बेसिक यूज होने वाला है टोपोलॉजी से रिलेटेड, उससे हम लोग डिस्कस करेंगे. और अगर आगे टोपोलॉजी का लेक्चर रखना होगा तो हमें बताइएगा, तो हम आगे टोपोलॉजी पे प्रिपेयर करेंगे, तो हम डिलीवर करेंगे लेक्चर. बहुत ही बेसिक है, क्वेश्चन आए या ना आए, बट ये है रियल एनालिसिस या एनालिसिस करने के लिए हमें थोड़ा सा ये जाना जरूरी है, बस और कुछ नहीं. कर रहे हैं जो भी हमने लिखा है. Yes, sir. यस सर, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं. स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन. यस सर, यस सर. यस सर, स्क्रीन दिख रही है. यस सर, आप स्टार्ट करिए प्रेजेंटेशन. दिख रही है स्क्रीन. फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ कुछ जो ज्यादा दो तीन डेफिनेशन. टारगेट ये था कि हमें क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करें एग्जाम, तो उस तरीके से हमने कोशिश किया है बस. तो आर्गुडिन प्रॉपर्टी कहती है फॉर एवरी एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर. मीन्स दैट कोई भी दो रियल नंबर हमारे हैं, एक्स एंड वाई, then there exists a integer such that n y is greater than x. तो इसी को अनदर वे में हमने डिफाइन या लिखने की कोशिश किया. तो बहुत अब हम मैं थोड़ा है बट आगे है रखिएगा. लोअर बाउंड ऑफ a set which is subset of real number. A small m, a real number small m is called a lower bound of s, where s is subset of real number. A lower bound point note a lower bound of s. If for all elements of s is greater or equal to m,
then m is called lower bound. यहाँ पे हमने ये कहने की कोशिश की है a lower bound where s is subset of r, then a real number small m is called a lower bound of s if for all s greater or equal to m. For example, if we take s is equal to minus 1 upon n belongs to natural number. Here हम देख सकते हैं m सारे जो एलिमेंट्स ऑफ s, every element of s is greater than or equal to minus 1. So minus 1 is the lower bound, a lower bound, and is a lower bound. So lower if exists a lower bound of any set, then हम बहुत सारे लोअर बाउंड फाइंड आउट कर सकते हैं. -1 भी होगा, -2 भी होगा, बिकॉज इफ every element of s is greater than or equal to -1, then obvious every element of s is greater than -2. A real number bound for s if every element of s is greater than we want to define infimum of s set which is subset of r. सारी जो एनालिसिस आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो सब रियल नंबर पे है विद यूजुअल सेंस. ठीक, ये याद रखिएगा, नहीं तो फिर रिजल्ट इधर उधर भी हो सकते हैं. द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, अब जो सारे हमें लोअर बाउंड मिले थे, फॉर एग्जांपल जो हमने सेट लिया था, ये s is equal to minus 1 upon n, where n is natural number. -1 is a lower bound, फिर -2 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, -3/2 भी हो सकता है. So if we collect all lower bounds for any set, if we can take the greatest lower bound, then it is called infimum of. तो लोअर बाउंड 0 से इसके हर एक एलिमेंट इसका बड़ा होगा. एवरी एलिमेंट ऑफ s इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. इन फैक्ट स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0. यहाँ थोड़ी मिस्टेक है, 1 नहीं होना चाहिए, इसका इनफिमम 0 होना चाहिए था. ये आवाज आ रही ना? तो यस सर, आवाज आ रही है, कंटिन्यू करिए. ओके ठीक. तो सिमिलरली आवाज नहीं आ रही है. वी अपर बाउंड s, तो s ऑफ r s किसी को नहीं आ रही है अशोक सर आवाज आ रही है, कंटिन्यू. सर यार ना, ठीक है. इनबॉक्स में लिखिएगा, जिसको कुछ प्रॉब्लम हो तो हमारे कोऑर्डिनेटर आपको रिप्लाई करेंगे. हम लोग हाँ, प्लीज आप चैट बॉक्स में जो भी समस्या हो उसे रखें, हम आपको बताएंगे उससे रिलेटेड इशू सॉल्व करने का. तो प्लीज आप चैट बॉक्स में रखिए, जिससे हमारे स्पीकर बिना किसी बाधा के कंटिन्यू कर सकते हैं. Yes. Now we want to define upper bound of s. Similarly, जैसा कि मैंने infimum या upper lower bound डिफाइन किया, if s is subset of r, then a real number हमने डिनोट किया कैपिटल M से is called upper bound. फिर से पॉइंट भी नोटेड, upper bound of s if for every s is less or equal to capital M. हमने एक सेट लिया, फिर से रिकॉल करता हूं मैं इस डेफिनेशन को. लेट s सबसेट ऑफ r, देन a real number which is denoted by capital M is called upper bound of f if for all s is the element of s is less than or equal to capital M. So for example, if we take s is equal to 1 upon n such that n belongs to natural number, then यहाँ फिर मिस्टेक हुई क्या? एवरी एलिमेंट, यहाँ मिस्टेक है. यहाँ पे हमें लिखना चाहिए था 0,
0 लिखना चाहिए था फॉर एवरी एम। ठीक है, ठीक, ओके ओके। फॉर एवरी सही है सर, अशोक सर सही है। हमने ये दिखाने की कोशिश किया। हाँ, ओके ओके ओके। हमने यहाँ पे एम, हमने कोई भी एम, कोई एलिमेंट लीजिए रियल नंबर जो कि 1 से बड़ा हो, देन इट इज अ लोअर अपर बाउंड ऑफ एस। ओके, तो देखिए पहले तो फर्स्ट टाइम हमने पॉइंट आउट -1 लिया, बट यहाँ पे हम ये दिखाने की कोशिश किया हमने, अगर कोई भी रियल नंबर लेते हैं कैपिटल एम विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, देन इट इज अ अपर बाउंड फॉर एस। Okay. Now we want to define supremum of the set S, which is a set of real number. Again, the least upper bound. Again, least पहले क्या था? Greatest lower bound. इसमें क्या है? हमें अपर बाउंड मिलते गए, बट उनमें से हमको सबसे छोटा लेना है। जितने भी हमें अपर बाउंड मिल रहे हैं, बट उनसे हमें सबसे छोटा अपर बाउंड लेना। तो डेफिनेशन ऑफ द सुप्रीमम ऑफ द सेट, which is subset of R, the least upper bound of S is called supremum of S. S is equal to 0, 1, open interval. Then every element of real number which is greater than or equal to 1 is a upper bound. But हमने कलेक्शन किया किसके अपर बाउंड का, जो किसके एस के, जो कि क्या है 0, 1। तो उसका लीस्ट यानी सबसे छोटा लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 1, s is equal to 1. Now we want to define the interval. Definition of the interval, where s कोई भी सबसेट है r का, let s subset of r, s subset of r is called interval if a भी इन जनरल कोई पॉइंट है जो कि इक्वल नहीं है, and without is less than b, b be 2 points of S where A not equal to. For all x, कैसा है x? Where x is greater than A and less than B, and then if x belongs to S, S is called interval. फिर से डेफिनेशन को पढ़ते हैं। S सबसेट ऑफ R, अगर उसका कोई भी 2 पॉइंट हम उठाएं उसके बीच वो इक्वल नहीं होने चाहिए। सपोज दैट a कमा b, a इज लेस देन b एंड x कोई भी हम, तो x हमारा s फिर से जाना चाहिए, तो ये इंटरवल होगा। तो दिस इज डेफिनेशन ऑफ द इंटरवल। नाउ अब हमारा जो लेक्चर है अभी तक जो हमने डिलीवर किया, जो बोला, वो था सिर्फ एक फॉर्मेलिटी, और उसको जानना जरूरी था और जानना इसको भी जरूरी है। तो इंटीरियर पॉइंट of the set where S is subset of real number. Again, S is subset of real number. A belongs to R. In fact, A, अभी आप आगे देखोगे, A जब भी हम इंटीरियर पॉइंट डिफाइन करते हैं, A S का ही मेंबर होता है, बट डेफिनेशन हम जगह जगह A R से लेंगे और आप खुद ही देखेंगे। दिस इज ए नेसेसरी कंडीशन। Let S subset of R and A belongs to R is called interior point of S if there exists, point be noted here, there exists epsilon greater than 0 such that A minus epsilon comma A plus epsilon contained in S, means that A point in R is called interior point of S. S is a subset of R if there exists an epsilon greater than 0, A, देखिए, if A minus epsilon, A plus epsilon open interval F, A minus epsilon A plus epsilon में है, तो A S में गया। जो हमने शुरू में कहा था A belongs to S लिखते हैं इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन, तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। और देखिए, कोई भी कितना भी छोटा इंटरवल, छोटी लेंथ का इंटरवल हो, अनकाउंटेबल होता है, उसमें रेफरल जैसा कि काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबिलिटी की क्लास जो पिछली हुई थी उसमें शायद ये बताया गया था, इंटरवल इज ऑलवेज अनकाउंटेबल, इन फैक्ट इट इज सिमिलर टू आर। तो एस इज अनकाउंटेबल एंड ए बिलोंग्स टू एस। दीज कंडीशंस आर नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट। ऐसा नहीं कोई
एस इज ए एस में हो और एस अनकाउंटेबल हो तो इंटीरियर पॉइंट इसका बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इस अगर वो इंटीरियर पॉइंट है तो ए को एस में जाना होगा और एस को अनकाउंटेबल होगा। ये नेसेसरी कंडीशन है, नॉट सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन कहने का मतलब है अगर ए कोई सेट एस हमारा कोई सेट है वो अनकाउंटेबल है और कोई एलिमेंट रखता है तो जरूरी नहीं वो एलिमेंट इसका इंटीरियर पॉइंट हो। नोट उसके लिए हमने एग्जांपल भी आपको देना चाहा है कि क्या है, अनकाउंटेबल सेट इज नॉट नीड भी अनकाउंटेबल। तो उसका कोई भी पॉइंट लीजिएगा तो आप देखेंगे जब भी हम उसके अराउंड हम कोई भी कितना बड़ा हम नेबरहुड अगर कंस्ट्रक्ट करेंगे तो उस इंटरवल में हमें बहुत पॉइंट पाए जाएंगे, तो कभी नहीं ये कंटेन कर सकता एनी इंटरवल। सो हियर डज नॉट एग्जिस्ट एनी इंटीरियर पॉइंट। एंड 3 ओपन इंटरवल और सिंगलटन 1 है। So 1 is not interior point, but any element in the open 2, 3, open interval 2, 3 is interior point of S. तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो पहले था नेसेसरी कंडीशन को हम बार बार समझाने की कोशिश किया है कि 1 है इसमें और सेट भी अनकाउंटेबल है बट 1 इज नॉट इंटीरियर पॉइंट। हाँ तो selection now we define selection of all interior points of S denoted by S ऊपर नॉट है और इंटीरियर इन आई एन टी ब्रैकेट में एस। सिलेक्शन ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट डिनोटेड बाय नॉट अपर में और इंटीरियर आई एन टी एस। नोट नेक्स्ट ए एस सबसेट ऑफ आर इज ओपन। ये डेफिनेशन है। ओपन सेट को हम कई तरीके से डिफाइन करते हैं बट एक ये भी डेफिनेशन है, क्या है कि ए सबसेट एस हो जाएगा। कई तरीके से डिफाइन करते हैं तो क्या है, अगर इसका इज इंटीरियर पॉइंट देन इट इज ओपन। एक्सटीरियर पॉइंट कैसे डिफाइन करेंगे, लेट एस सबसेट ऑफ आर एंड ए बिलोंग इज कॉल्ड एक्सटीरियर पॉइंट। Then S is selection of all exterior point of S denoted by exterior of S. Again we define recall करते हैं क्या है exterior point की definition। of F अगर ये है इस कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर बन जाए, है ना। selection of all interior point of S denoted by माने आइसोलेट का मतलब अलग थलग से होता है, तो यहाँ पे उसी तरीके से डेफिनेशन है। लेट एस सबसेट ऑफ आर then A belongs to R is called isolated point of S if there exists again and A plus epsilon intersection S is equal to A. Selection of all isolated point denoted by iso S for example belongs to R, real number से is called isolated. There exists of course A isolated point होगा तो सेट का भी मेंबर होना होगा। if epsilon greater than 0 A minus epsilon A plus epsilon इंटरसेक्शन आना चाहिए इक्वल में A सिंगलटन। फॉर एग्जाम्पल हमारा भी अभी S इज इक्वल टू नेचुरल नंबर यूजुअल सेंस में है, तो S is equal to n, then for every natural number is a isolated point for the S.
तो ये अगेन ध्यान देने वाली बात है कि अगर अब डेफिनेशन से क्लियर है कि क्योंकि इंटरसेक्शन सिंगलटन ए आना चाहिए, यानी कि तो ए पॉइंट होएगा एस का एलिमेंट ए belongs to isolated adherent point. Let S subset of R and A belongs to R is called adherent point of S if again for every again not intersection S not equal to phi n. Means that कुछ ना कुछ इंटरसेक्शन मिलना चाहिए का या ना हो। पिछली बार में हम थे यहाँ पे कि ए भी आना चाहिए इंटरसेक्शन में, तो इंटरसेक्शन में अगर ए आ रहा है तो ए एस का भी मेंबर होगा, ऑब्वियस है। और यहाँ पे हम लिख रहे हैं नॉट, तो ये जरूरी नहीं है कि ये एस का मेंबर हो। द कलेक्शन ऑफ ऑल एडहेरेटेड बाय ये ऊपर से हम लिंक करवाने की कोशिश कर रहे हैं। अल्फा बिलोंग्स टू आइसोलेटेड, अल्फा इज पॉइंट ऑफ बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। ऐसा हो सकता है कि वो एडहेरेंट पॉइंट हो बट आइसोलेटेड पॉइंट ना हो, बिकॉज एस अगर मेंबर नहीं है, अल्फा इज नॉट मेंबर ऑफ एस, देन एडहेरेंट पॉइंट तो कभी आइसोलेटेड पॉइंट नहीं बनेगा। तो इफ अल्फा इज आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ एस देन अल्फा इज एडहेरेंट पॉइंट बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। फॉर एग्जांपल इसमें हमने दिया इफ एस इज इक्वल टू 0, 1 then 0 is adherent isolated point because 0 is not in the S, तो 0 कभी उसका आइसोलेटेड पॉइंट नहीं बनेगा, बिकॉज आइसोलेटेड के लिए होना ही चाहिए था उसमें पॉइंट सेट में। तो 0 इज द एडहेरेंट पॉइंट बट 0 इज नॉट आइसोलेटेड पॉइंट। लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन, लिमिट पॉइंट ध्यान देने सब जगह में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कहाँ फार वरी कहाँ दे रही है, बस और कुछ नहीं। लिमिट पॉइंट let a subset of real number and a belong again a real number से है is called limit point of S if for every again for every so let a subset of real number and a belongs to real number is called limit point of S if for every epsilon greater than 0 and उसका हर एक नेबरहुड a minus epsilon epsilon नेबरहुड a minus epsilon a plus epsilon इंटरसेक्शन S minus सिंगलटन ए। सिंगलटन कभी कभी हम एस माइनस सिंगलटन ए एस से यानी कि ए निकालते हैं, कभी कभी कुछ बुक्स में आपको ऐसे भी लिखा मिलेगा ए माइनस एप्सिलॉन गामा ए प्लस एप्सिलॉन माइनस सिंगलटन ए इंटरसेक्शन एस इज इक्वल नॉट इक्वल टू 5, तो कुछ भी चलेगा। तो एस सेट ऑफ आर एंड ए बिलोंग टू रियल नंबर इज कॉल्ड लिमिट पॉइंट ऑफ द एस ए फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 ए माइनस एप्सिलॉन गामा ए प्लस एप्सिलॉन, यानी कि एप्सिलॉन नेबरहुड एवरी एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ ए इंटरसेक्शन विद S minus singleton A not equal to phi n। Here observation करते हैं, कभी कभी D ऑफ S से भी होता है, तो नोट करते हैं। तो आप लोग जो आपको सुटेबल लगे वो रखिएगा। सिलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट डिनोटेड बाय डिराइव सेट कहते हैं। एंड डिनोटेड बाय एस प्राइम। यहाँ पे ये है कि एस प्राइम इज दैट अल्फा इज द लिमिट पॉइंट ऑफ एस, देन एडहेरेंट पॉइंट होगा, बिकॉज एडहेरेंट पॉइंट में भी ए इसमें निकालने के बाद में नॉट इक्वल टू 5 आना चाहिए, उसमें ए भी शामिल था। आई आता है तो बड़े सेट के साथ भी हमारा एप्सिलॉन नेबरहुड के साथ ऑब्वियस है नॉट इक्वल टू 5 आएगा। तो दिस इज जस्ट एज ए ऑब्जर्वेशन, so you can see easily if alpha is the limit point then it is adherent point obvious, yes। 1 2
केवल 2 ही एलिमेंट है, देन 1, 2 इज एडहेरेंट पॉइंट, बट लिमिट पॉइंट नहीं होगा, बिकॉज व्हेनेवर वी तुमने कहा हर एक के नेबरहुड का इंटरसेक्शन उस पॉइंट को रिमूव करने के बाद भी हमारा हाई आना चाहिए, बट व्हेनेवर वी टेक एप्सिलॉन इक्वल टू -12 या एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/4 या कुछ भी छोटा लेंगे, एक से छोटा, अगर एप्सिलॉन और हाफ लिया तो 1 - हाफ यानी कि हाफ, और 1 + हाफ माइनस यानी कि 1 3/2 इस इंटरसेक्शन में, और 1 को जैसे रिमूव करेंगे इंटरसेक्शन विद द एस एम्प्टी आएगा। तो 1 और 2, अगर 1 को नहीं रिमूव करेंगे तो इंटरसेक्शन में केवल 1 आएगा, और अगर 1 को रिमूव कर देंगे तो हमेशा हमें क्या मिलने वाला है, एम्प्टी सेट। तो 1 और 2 इज द लिमिट, इज द एडहेरेंट पॉइंट बट नॉट लिमिट पॉइंट। तो कंक्लूजन ये हमारा है कि अगर लिमिट पॉइंट होगा तो एडहेरेंट पॉइंट भी होगा, एडहेरेंट पॉइंट है तो जरूरी नहीं है वो लिमिट पॉइंट हो। वो सेट रहे हैं कि ए सबसेट ए सेट इज क्लोज इफ एंड ओनली इफ उस एस प्राइम यानी कि लिमिट पॉइंट उसके अंदर कंटेंट होने चाहिए। एस इज कॉल्ड क्लोज सेट इफ एंड ओनली इफ derived set of S contained in S. So again, so एक S subset of R if and only S subset of R, S is closed if and only if complement of it open. Observation, set is a set S can have no limit point. S is equal to S अगर हमने टेक किया है नेचुरल नंबर, देन S प्राइम इज इक्वल टू 5। अगेन हम देख सकते हैं और भी ले सकते हैं, S इज इक्वल टू इंटीजर ले लें, या को सेट मिलेंगे जिसका लिमिट पॉइंट कोई नहीं होगा, कोई भी फाइंड नहीं होगा। इवन आप मैट्रिक्स हर एक एप्सिलॉन नेबरहुड के इंटरसेक्शन में इनफाइनाइट नंबर होने चाहिए इंटरसेक्शन में सेट के साथ में, बट यहाँ अगर जब भी आप फाइनाइट लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है इनफाइनाइट कहाँ से आएंगे। पॉइंट यानी कि आपका एस प्राइम जो है यानी कि डिराइव सेट ऑफ एस इज इक्वल हो सकता है फाइनाइट हो। फॉर एग्जांपल एस इज इक्वल 1/n सच दैट n इज नेचुरल, देन आप देखिए 0 तो यहाँ पे हमने देखा कि और भी सेट आप ले सकते हैं। आप फाइनाइट के केस में तो हमारा फाइनाइट सेट ही आ जाएगा, एम्प्टी लेकिन होगा, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, सेट एस कैन हैव इनफाइनाइट लिमिट। इन जस्ट कोई भी आप सेट कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। हमने क्या लिया है, देखेंगे हर एक इंटीजर आपका लिमिट पॉइंट बनने के लिए तैयार। तो हो सकता है एम्प्टी हो, किसी सेट के पास कोई लिमिट पॉइंट ना हो, मीन्स दैट हो सकता है फाइनाइट नंबर अब लिमिट पॉइंट हो सकता है ऐसा भी हो उसके पास इनफाइनाइट लिमिट पॉइंट हो सकता है ऐसा भी हो सकता है। यू कैन कंस्ट्रक्ट एनी अदर एग्जांपल। तो हो सकता है ऐसा भी हो, ए सेट कैन हैव आर रियल नंबर और मैनी अदर यू कैन कंस्ट्रक्ट। तो 4 पॉइंट हम लोगों को मिले, क्या है, नंबर 1 है S can have no limit point, S can have finite limit point, S can have infinite limit point, S can have
a set, again next definition, a set as a set of R is called perfect set. Perfect set if derived set and initial set is equal, same, if आते derived set and initial set same आते हैं होते हैं तो वो perfect set कहलाएगा, अपने आप में वो perfect होगा. इसे derived set is equal to initial set, so this set is called perfect set. Now again, a set S is dense in X. X से dense, कई बार डेंसिटी वाली डेफिनेशन में इसको लोग लाते हैं, बट यहाँ पे जो हम डेफिनेशन दे रहे हैं तो dense in X if and only if definition always if and only if the closure of S डिफाइन कैसे करते हैं, एस क्लोजर इज बार को हम क्लोजर ऑफ एस पढ़ेंगे. ए सेट एस इज डेंस इन एक्स if closure of S is equal to S, और अगर आप S को डिनोट या डिफाइन हम ऐसे कर सकते हैं, करते ही हैं, S बार इज इक्वल टू यानी क्लोजर ऑफ S इज इक्वल टू S यूनियन S प्राइम मीन्स द डिराइव सेट ऑफ S. तो अगेन कई जगह आपको ऐसे भी दिखाई दे सकता है, क्लोजर ऑफ S इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ closed set, S is equal to intersection of all closed set, F is closed in, और F जो है F को रखे भी, कंटेन्ड भी करे. तो ऊपर वाली भी डेफिनेशन एंड नीचे वाली भी डेफिनेशन जो आपको इजी लगे वो आप ठीक. बाउंड्री पॉइंट, कभी कभी बाउंड्री पॉइंट को डिफाइन करने से कुछ जगह आप ईयर पॉइंट कहते हैं, बाउंड भी कहते हैं. हमारे लिए ईयर पॉइंट और बाउंड्री पॉइंट सेम ही है, और ये इशू नहीं होना चाहिए और कोई भ्रम नहीं होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि एग्जाम में कैसे आएगा, क्या डेफिनेशन ऑफ द बाउंड्री पॉइंट फिर पूछता है. और तो ज़्यादा उस का क्लियर बने, यानी कि कलेक्शन ऑफ बाउंड्री पॉइंट निकाल करते हैं ऐसा पॉइंट ऑफ इज एंड नॉट एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ अलग अलग नोटेशन रखिएगा. ये आप फार्मूला टाइप कह सकते हैं, हम फार्मूला टाइप से है कि क्या बाउंड्री ऑफ एस हम ऐसे फाइंड आउट कर एस का इंटीरियर यूनिकॉम्प्लेक्स का यूनियन और से फाइंड आउट करें को फार्मूलाइज करने की कोशिश किया है. मैं यानी कि मैथमेटिकली हम लिखने की कोशिश की है, मैथमेटिकली डिफाइन किए हैं. क्या आया है, डी ऑफ एस इज इक्वल टू आर माइनस इंटीरियर ऑफ एस एंड यूनियन इंटीरियर ऑफ नहीं वो इंटीरियर. ये मूलक सकते हैं इसको एग्जांपल we take S यानी कि इंटीरियर ऑफ नेचुरल एंड एक्सटीरियर ऑफ एस एंड तो क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंट फाइव का यूनियन और माइनस एन, तो फाइनली बाउंड्री
n is the boundary of S. Then again, if we take S is equal to 0, 1. So interior of 0, 1, again 0, 1. And exterior of 0, 1, minus infinity 0, union 1, infinity. थोड़ा हो सकता है हाँ, but boundary of S is equal to R minus 0, 1 union, वो खुले में रख रहे हैं ऊपर वाले, माइनस इन्फिनिटी 0 यूनियन 1 इन्फिनिटी। तो आप देखिएगा केवल इस पूरे यूनियन वाले 2.0 एंड 1, तो बाउंड्री पॉइंट ऑफ इक्वल टू 0 एंड 1। और इसमें आप क्या कर सकते हैं, S is equal to R, then boundary of S is equal to empty set. The boundary is, we take S is equal to real number set, then we get a boundary of S is equal to empty set. कोई बाउंड्री नहीं होगी रियल नंबर की, क्योंकि इंटीरियर उधर R ही हो जाएगा और एक्सटीरियर फार हो जाएगा। जैसे R से मास्टर भी तो एम्प्टी मुझे मिलने वाला है। हेलो जी सर। यस सर, यस सर। आप थोड़ा फास्ट भी प्रेजेंट कर सकते हैं सर। हाँ हाँ, ओके ओके, ठीक 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 ठीक। अच्छा, बोल्जानो-वायरस्ट्रास थ्योरम, ये एवरी सबसेट ऑफ आर, इनफैक्ट बोल्जानो-वायरस्ट्रास थ्योरम ये जो हम लिख रहे हैं, इनफैक्ट मैट्रिक इन जनरल मैट्रिक के बेस में ये टू है थ्योरम। सर आपके वॉइस में कोई प्रॉब्लम है सर। आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी। हेलो, हाँ अशोक सर, आपकी नहीं आ रही, नहीं है, वॉइस ऑडिबल नहीं है, नेटवर्क इशू हो, बट आप कंटिन्यू करिए। आई थिंक नेटवर्क इशू है, आवाज आ रही है बट कट कट के वही आ रही है। हेलो हेलो, अब यार तो आवाज अभी भी वैसे ही आ रही, कट कट के ना। नहीं अशोक सर, अभी आवाज अब क्लियर सर है, आप कंटिन्यू करिए। अभी आवाज क्लियर आई, आप कंटिन्यू करिए। है ना, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, थैंक यू। तो एप्सिलॉन नेबरहुड मींस दैट कोई भी अगर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 लेते हैं, ए माइनस एप्सिलॉन और ए प्लस एप्सिलॉन, जो ये ओपन इंटरवल है, दिस इंटरवल इज कॉल्ड एप्सिलॉन नेबरहुड फॉर द set A belongs to a real number and A is subset of R is called neighborhood of S. A means that हम किसी एक पॉइंट का नेबरहुड कैसे कहेंगे, वो डिफाइन करने की कोशिश। हाउ वी डिफाइन ए नेबरहुड फॉर A. A is a real number set. A is a real number. A real number and a subset of R is called a neighborhood of A if it contains a neighborhood, epsilon neighborhood. तो पहले हमने एप्सिलॉन नेबरहुड इसीलिए देखा किया था, हम नेबर बताना चाहते हैं। नेबर देखिए, यहाँ पे ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कोई सेट है जो नेबरहुड बने किसी पॉइंट का वो ओपन ही हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है वो किसी पॉइंट का बने, किसी पॉइंट का ना बने। फॉर एग्जाम्पल 0, 1 लेंगे तो इसके 0 और 1 को छोड़ करके, क्लोज 0, 1 बोल रहा हूँ, 0 और 1 को सभी के लिए ये नेबरहुड बनेगा और 0 और 1 के लिए नेबरहुड नहीं बनेगा। तो यहाँ पे हम यही बताना चाह रहे थे कि
यहाँ पे इन जनरल पॉइंट ए लिया गया था रियल नंबर का, और इन जनरल सबसेट है आर का, जो कि कहलाएगा नेबरहुड और एप्सिलॉन। तो यहाँ पे पॉइंट यही था। कभी कभी ये इशू बनता है कि नेबरहुड बोलेंगे तो ओपन से हमारा ताल्लुक रहेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है कि एप्सिलॉन नेबरहुड रखे, बस ये पॉइंट। कनेक्टेडनेस हम यहाँ डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं रियल लाइन में। बस ध्यान रहे हम रियल लाइन विद यूजुअल सेंस पे ही बात कर रहे हैं। ये तभी सही है जब हमारा आर विद यूजुअल सेंस में। इनफैक्ट कॉम्पैक्टनेस की हम डेफिनेशन क्या दे रहे हैं? सबसेट एस ऑफ आर कॉम्पैक्ट इन आर इफ एंड ओनली इफ इट इज ये आर। इनफैक्ट ये आर है यूजुअल सेंस, बट अभी इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि आर विद यूजुअल सेंस पे ही हम लोग बात कर रहे हैं। की कंडीशन इसलिए हम एज ए डेफिनेशन इसको ला रहे हैं, बट बाद बाकी थी तो कॉम्पैक्ट कवर ववर तो टोपोलॉजी का हिस्सा हो जाएगा। इसीलिए मैंने शुरुआत में लेक्चर में कहा था कि बस हम लोग वो चीज़ जानने की कोशिश कर रहे हैं जो नेसेसरी है जानना रियल लाइन को पढ़ने के। रियल में क्या कॉम्पैक्टनेस डिफाइन करना है, तो इस तरीके से भी हम डिफाइन कर सकते हैं। कॉम्पैक्ट सेट कैसे कहेंगे? ए subset S of R is called compact in R if and only if it is closed and bounded. This is sufficient and necessary both. And connected भी ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। अगेन R यूजुअल सेंस के लिए सही है। A subset S of R is called connected in R if and only if it is interval. अब इंटरवल होगा तभी कनेक्टेड होगा, अगर इंटरवल नहीं होगा प्रॉपर्टीज है। जरा एक बार आया था तो उसे मैं डिस्कस करना चाहूँगा। अब मैं स्पेशल बट इन जनरल भी ये भी जस्ट टू होते हैं। टोपोलॉजी है उसी इंड्यूस इंटरसेक्शन से बनाई टोपोलॉजी वाई पे। सब स्पेस में कह रहा हूँ लेट, और अगर ज़्यादा समझ नहीं आ रहा तो ज़्यादा दिमाग बी कनेक्टेड इन हमने कहा लेट आर सब स्पेस, और फिर उसमें लिखा हम ये देखिएगा ये क्वेश्चन तो मैंने कंसर्न द नंबर तो एज ए सब स्पेस, वहाँ भी हमने आर लिया था और वाई को हमने सब आर लिया था। यहाँ क्यू है वाई की जगह पे सब स्पेस एक छोट लिया भी पूछा के इज बाउंड of Q, K is complex set of Q, K is एंड जो डेफिनेशन थी हमने तो हम वहीं दिखाते हैं क्या था। यस हाँ सबको दिख रहा होगा। आर इज यूजुअल वाई इज सब स्पेस आप, और ए बी सी जो भी थे वहाँ क्यू लिया है। कैसे लिया? तो ए का बी इंटरसेक्ट क्यू, तो क्यू सेट हो गया। Sir, voice is not
यस अशोक सर, वॉइस आपकी थोड़ी क्लियर नहीं आ रही अभी। सर आप शायद अपना प्लेस चेंज करिए, तो इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से इशू आ रहा है। तो थोड़ा प्लेस चेंज करेंगे, कहीं दूसरी जगह जाए तो शायद वो कनेक्शन सही हो। हाँ सर। अच्छा अच्छा अच्छा। आपको रिप्लेस करेंगे, मे बी नेटवर्क वहाँ अच्छा हो। अब हेलो। हाँ अशोक सर। हाँ हाँ सही नहीं हुआ। इसकी कट कट के आ रही है। ये फोन का इशू तो नहीं होगा, नेटवर्क का ही इशू होगा। अच्छा जितने बस सही हाँ आ अशोक रहा है सर, तो हमें लगता है कुछ थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है, तो आप कंटिन्यू सर कर ना सकते हो हैं। तो आप माइक। हाँ नेटवर्क का सर, अब इशू हो सकता इम्प्रूवमेंट हुआ है थोड़ा। पास करके ना हो बोलिए, वो माइक की वजह से। है। हाँ ना। ओके सर, कंटिन्यू। हाँ बेसिकली इसको क्या एंड हम आप बी बिलोंग करते हैं इरेशनल नंबर से, तो ए बी हो या ना हो, ए बी इंटरसेक्शन क्यू इंटरवल ए कमा बी इंटरसेक्शन क्यू दोनों तरीके से लिख सकते हैं। तो के इज क्लोज्ड इन क्यू एंड के इज ओपन इन क्यू, बिकॉज वो चार प्रॉपर्टी जो मैंने लिखी है उसको आप ध्यान से फिर देखिएगा तो समझ में आ जाएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम इसको एक ऐसा हमें सेट क्लोज्ड एफ मिल रहा है ए कमा बी जो इंटरसेक्शन क्यू के रूप में लिख पा रहे हैं, इसलिए ये सेट के क्लोज्ड इन क्यू बोल रहा हूँ इन क्यू, एंड हम जी ए कमा बी ओपन में इंटरसेक्शन क्यू भी लिख पा रहे हैं, जी इंटरसेक्शन क्यू भी लिख पा रहे हैं, वेयर जी इज इक्वल टू ए कमा बी इट इज ओपन इन आर। तो ये ओपन लिखा था ए सस्टेड इज ए वो भी ए सस्टेड वाई इज कॉम्पैक्ट आई इफ एंड ओनली। तो यहाँ पे देखें कि ए कामा बी इक्वल है, ए कामा बी ये क्लोज्ड एंड बाउंडेड नहीं है, आज नहीं, इसलिए हमारी कॉम्पैक्टनेस की डेफिनेशन क्या थी, क्लोज्ड एंड बाउंडेड, तो ये फेल कर गई, तो ये कॉम्पैक्ट नहीं होगा। तो चार पर हमने जो लिखी थी इसीलिए लिखी थी, अगर हमको आपको रिजल्ट पता है तो डायरेक्ट कैंसिल हो जाएंगे। तो क्वेश्चन कुछ और रह गए रह गए। हेलो कुछ This is not coming. हाँ अशोक हाँ सर, आ रही है अशोक सर। आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ तो फिर ठीक है। एक्चुअली में इवनिंग में प्रॉब्लम करता है नेट, इसीलिए मैंने कहा था थोड़ा जल्दी रखिएगा। तो वो रोज का है तो पता नहीं सही। क्वेश्चन है 6-7 क्वेश्चन है, एक तो डिस्कस हो ही चुका है 6-7। जी जी जी, हाँ सर, जल्दी अभी डिस्कस आवाज कर सकते हैं सर आप आराम से। ज्यादा दिमाग जी जी। सेट ऑफ इरेशनल नंबर है, कहाँ से आते तो
तो ऑब्वियस क्लोजर को हमने कैसे डिफाइन किया था, डी यूनियन, यानी कि ए क्लोजर को हमने कैसे, एस क्लोजर हमने कैसे डिफाइन किया था, एस यूनियन डिराइव्ड सेट ऑफ एस, यानी कि एस प्राइम से। तो अगर हम डिराइव सेट ऑफ इरेशनल नंबर इज एग्जैक्टली विद रिस्पेक्ट टू आई एलिमेंट ऑफ, तो इज इक्वल टू बिकॉज कोई भी एप्सिलॉन नेबरहुड, अगर कोई भी एप्सिलॉन नेबरहुड चेक करेंगे उसके अंदर रेशनल एंड इरेशनल बोथ आएंगे, तो वो इंटीरियर का कोई भी नहीं बनने वाला पॉइंट है, जी का कोई भी मेंबर इंटीरियर पॉइंट नहीं बनना है। तो इंटीरियर ऑफ द जी इज इक्वल टू 5 एंड क्लोजर ऑफ द टू आर, आंसर सी। दूसरा क्या है, इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा, बस कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल ये कि हमें आंसर नहीं पता हो जाता बट कुछ डिस्कार्ड हो जाते हैं तीन, तो ऐसे भी हो जाता है तो कुछ जी ने हमसे कहा था कुछ ऐसे भी कर सकते हैं क्वेश्चन, उन पे भी ध्यान दो, केवल हमें नहीं भी आते हैं तब भी हम कर ले जाएं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल ये सवाल है, लेट एस बी एन इनफाइनाइट सेट, पॉइंट इज इनफाइनाइट सेट ऑफ आर सच दैट एस इंटरसेक्शन क्यू इज इक्वल टू 5, मींस दैट ये सबसेट रहा होगा इरेशनल नंबर का, इसीलिए रेशनल नंबर के साथ इनपुट सेट आ रहा। Which of the following statement are is equal to 5 means that this subset are irrational number। फिर क्या कह रहा है, ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है एस मस्ट हैव ए लिमिट पॉइंट विच इज बिलोंग्स टू क्यू, एस हैव ए लिमिट पॉइंट, एस मस्ट है, मस्ट पॉइंट इज नॉट मस्ट, एस मस्ट हैव ए लिमिट पॉइंट विच इज बिलोंग्स टू क्यू, एस मस्ट हैव लिमिट पॉइंट विच इज बिलोंग्स टू irrational number, एस कैन नॉट बी ए लिमिट, कैन बी ए क्लोज इन आर गिवन। हम सोल्यूशन इसका दे रहे हैं किस तरीके, गिवन एस बी एन इनफिनाइट सबसेट ऑफ आर एंड एस इंटरसेक्शन क्यू इज इक्वल टू 5 मींस दैट एस सबसेट ऑफ क्यू कॉम्प्लीमेंट आर माइनस एस, हमने दोनों तरफ कॉम्प्लीमेंट ले लिया है ना। तो एस फिर दिस इज लाइक आर माइनस एस कंटेन इन क्यू, तो हम डिराइव सेट अगर लेंगे तो डिराइव सेट क्या होगा, ये प्रॉपर्टी हमने लिखा था, ये देखिएगा यहाँ पे ये वाली ये प्रॉपर्टी यूज होएंगी कुछ डिराइव सेट की, यहाँ ट्राई कर सकते हैं। तो डिराइव सेट हमारा क्या आएगा, आएगा पूरी रियल लाइन आएगी, और आर जब आ गया तो एस इनफिनाइट सेट है, तो एस का भी हर एक पॉइंट आर में होगा, तो हर एस का हर एक मेंबर लिमिट पॉइंट बनने के लिए तैयार है, तो आर माइनस एस है मस्ट हैव ए लिमिट पॉइंट इन एस, ये ट्रू है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। और एबीसी के लिए तो हम एक सेट कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने कंस्ट्रक्ट किया है, इनफिनाइट सेट भी है, इरेशनल का सबसेट भी होगा, इसके पास कोई लिमिट पॉइंट, तो ऑप्शन ए बी सी डिस्कार्ड हो गया, डी सही होगा। अगर हमें डी का पता भी नहीं था तो अगर हमारे दिमाग में जाएगा तो ए बी सी डिस्कार्ड हो गया, तो भी हो सकता है। और ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था, इसका प्रूफ थोड़ा टेढ़ा है, टेढ़ा नहीं है, बट थोड़ा सा दिमाग लगाना है बट, और अगर आपको प्रूफ नहीं आता तो आप इजीली कर सकते हैं, केवल एक का है जो कि नहीं डेप्थ है, यू कोई ओपन सेट है सबसेट, if is set of R is a non-empty open subset of R,
देन कौन सा सही है? यू कंटेन ऑलवेज टर्न क्लोजर, बी ए इंटरसेक्शन यू क्लोजर 5, ए इंटरसेक्शन यू इज कंटेन इन यू, ए इंटरसेक्शन यू का क्लोजर इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन क्लोजर ऑफ यू। देखिए कौन सा है। फार सोल्यूशन क्या है बी सी डी के लिए? यू टेक, अगर आप यही ले लेते हैं ए इज इक्वल टू क्यू और यू ओपन था, नॉन एम्प्टी था, ओपन इंटरवल 0 1, तो इंटरसेक्ट जब करेंगे उसका क्लोजर निकालेंगे तो क्लोज्ड 0 1 आ जाएगा, ना ही ये 5 के इक्वल है, यानी कि बी वाला डिस्कार्ड, ना ही ये क्यू में यू में कंटेंट है, यानी कि यू तो ओपन था, और तो ये भी डिस्कार्ड। और इसका क्लोजर देखिएगा क्या कह रहा है, यू का क्लोजर इंटरसेक्शन, अगर क्यू टू इंटरसेक्शन क्लोजर 0 1 करेंगे तो उसे भी इक्वल नहीं, डी वाला भी डिस्कार्ड हो गया। थोड़ा सा ए वाला ऑप्शन जो है प्रूफ, वो थोड़ा सा टेक्निकली था, थोड़ा सोचने वाला था, बस और कुछ नहीं। तो हमने हिंट लिखी है और इनफैक्ट मैंने पूरा प्रूफ दिया है, तो आप लोग पढ़िएगा। मुझे लगता है आप लोगों पे छोड़ देना चाहिए इतना। नहीं तो फिर जो लिखा है वही पढ़ी। डेफिनेशन मैंने इसीलिए दिया था कि नेबरहुड, यहाँ पे क्वेश्चन मुझे दिखाता है विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरहुड ऑफ ईच पॉइंट, क्यों रेफरल नंबर क्या नेबरहुड बनेगा? नेबरहुड बनने के लिए क्या होगा, एक एप्सिलॉन नेबरहुड रखना चाहिए, बट एप्सिलॉन नेबरहुड रेफरल नंबर कहीं नहीं रखेगा, क्योंकि एप्सिलॉन नेबरहुड एंड क्या करा, लेट ए बी ए क्लोज सबसेट ऑफ आर, और यानी कि एक किसके बराबर होगा, डोर ऑफ द इंटीरियर का क्लोजर क्या एक को है, यानी अगर और का या काउंटेबल होगा एक ना दिया है, ओपन कहाँ से होगा, क्योंकि हमने शुरू में तो कॉम्प्लीमेंट का क्लोज है तो उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा, तो open है। इसमें थोड़ा सा सोचना काम था। और ए बी सी क्या देख सकते, ले लीजिए क्यू कॉम्प्लीमेंट, देन क्लोजर, उसका इंटीरियर का क्लोजर लेंगे, एम्प्टी आएगा, ए क्लोज, अच्छा ए इस एंड आई और आर ही जैसे सेट हैं जो क्लोपन है आर में, इसके अलावा कोई क्लोपन नहीं होता। करेक्ट। और ऑप्शन पहला तो डिस्कार्ड हो गया, काउंटेबल भी नहीं है, अनकाउंटेबल की कॉम्प्लीमेंट है, कैसे नहीं, कॉम्पैक्ट होने के लिए क्या कहना होना चाहिए था, क्लोज्ड एंड बाउंडेड होना चाहिए था। तो कॉम्पैक्ट भी डिस्कार्ड हो गया, काउंटेबल भी डिस्कार्ड हो गया, क्लोजर का इंटीरियर देखिएगा तो इनपुट आ गया, तो एबीसी डिस्कार्ड ना ओपन इज करेक्ट। हेयर जी इज कनेक्टेड है तो तुरंत दिमाग में आती है, आर का सबसेट है तो इंटरवल होगा, एंड जी यूनियन एच इज नॉट कनेक्टेड तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए इंटरवल नहीं होगा, क्योंकि हम रियल लाइन है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज एच अगर इनपुटी है देन एच इज कनेक्टेड, तो और क्या जी इंटरसेक्शन इज इक्वल टू 5 है, तो क्या इज नॉट कनेक्टेड, जी इंटरसेक्शन एच नॉट इक्वल टू 5 देन एच इज नॉट कनेक्टेड, जी इंटरसेक्शन एच इज नॉट इक्वल टू 5 इज एच इज कनेक्टेड। रिकॉल हम डेफिनेशन कॉल करते हैं एस कंटेंड इज कनेक्टेड इफ एंड ओनली एस इज इंटरवल, so G is interval of course, but G intersection is not interval because G intersection is not connected. So for A,
इज इक्वल टू ओपन जी इज इक्वल टू ओपन और नहीं तो अच्छा अभी कनेक्टेड है और जी कनेक्टेड है और इन डी वाले ऑप्शन में हम देख रहे हैं कनेक्टेड है। डी वाले के लिए जी इंटरसेक्शन एच इज इक्वल टू होना चाहिए और जी एच इज कनेक्टेड है क्या, तो हम डी वाले पे डी में नॉट समझ रहा है और एच अभी भी कनेक्टेड क्योंकि एच इंटरवल नहीं है। जी इंटरसेक्शन एच भी नॉट जो हमारी बेसिक कह रहा था कंडीशन सेटिस्फाइड करनी चाहिए तो हाँ वो हो रही जी कनेक्टेड अपोज हमने जो ली पर तो यहाँ पे एक ऑप्शन बचा अगर सवाल इज और इंटरसेक्शन भी ये है नहीं रिलाई किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है एस फाई नहीं है और सबसे तैयार का इस फाइनाइट यूनियन है फाइनाइट डिसजॉइंट बाउंडेड होगा देन विच चाहिए था इफ एस इज नॉट फैक्ट देन सुप्रीम नहीं आएगा अगर ले ओपन थ्री हम दोनों हैं नहीं है तो ये पहला इवेंट बोथ ने जो एग्जांपल लिया ए बी सी के लिए इवेंट क्या कह रहा है इस सुपर में है देन हम नहीं होने ना सुप्रीमम एंड इन्फीमम आएंगे ही आएंगे क्योंकि सुप्रीमम एंड इन्फीमम या तो सेट में होंगे या तो लिमिट पॉइंट होंगे तो अगर के सुप्रीमम एंड इन्फीमम आएंगे तो डी इज आल्सो राइट। तो लास्ट एग्जांपल ये है क्वेश्चन के as a subsequence this is converted in D क्वेश्चन है थोड़ा सा सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट क्या है मैंने डेफिनेशन नीचे लिखा टोपोलॉजिकल स्पेस डेफिनेशन है सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट इफ एवरी सीक्वेंस ऑफ पॉइंट इन एक्स has convergent sequence in S कौन कौन है वो पूछ रहा है तो आपको बस कॉम्पैक्ट ढूंढना है कौन कॉम्पैक्ट और सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट बेसिकली एक्सेप्शन में जो लिखा है वो सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट की डेफिनेशन लिखी है एंड बी में क्या कह रहा है क्लोज एंड बाउंडेड है सो इट इज कॉम्पैक्ट एंड दिस इज सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट ओके देन बी इज करेक्ट ए इज रॉन्ग एंड सी क्या कह रहा है डी इज इक्वल टू ओपन में
रियल लाइन कार्ड लेक्चर इज कंप्लीटेड कुछ जी हो गया थैंक यू सर, थैंक यू। चलो थैंक यू सो मच सर। थोड़ी वॉइस की प्रॉब्लम आ रही थी आपकी, वो नेटवर्क का इशू रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर अमेजिंग लेक्चर्स। Shashank, I think there is one question in chat box. Yes sir, you I can have comment. already given answer, but we will discuss with Ashok sir. So Yes, there is a sir. question from Ahmed Sajad. Are all element of countable set isolated point? ऑल Is there exist any countable set such that every element of that set is isolated point? No. Oh, sorry. का एग्जांपल भी दिया Ashok sir, please listen again. Are all elements of countable set isolated points? 100 होगा क्या एक्शन ये ना सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है अशोक सर। शशांक कोई बात नहीं, इसका आंसर हम दे दे रहे हैं कि क्यू एक काउंटेबल सेट है जिसके पास कोई भी आइसोलेटेड पॉइंट नहीं है। सो वी हैव अ सेट क्यू, सेट ऑफ रेशनल नंबर व्हिच हैव नो एलिमेंट, नो आइसोलेटेड एलिमेंट। यस सर। Yes, so we have a set Q which don't have any isolated point हमारी and a set. आवाज आ रही क्या? हाँ सर, हाँ सर। Yes Ashok sir, yes sir. जी सर। जी। हाँ कुछ जी जो बता रहे हैं वो सही है क्या? जी सर। अच्छा। If we take natural number, then every element is isolated point. If we take rational number set, then no element is isolated point. अच्छा सर, समटाइम्स बात की जाती है कि एम्पटी सेट का सुप्रीमम और इंफिमम क्या होता है। जैसे सुप्रीमम माइनस इंफिनिटी बताया जाता है और इंफिमम को प्लस इंफिनिटी कहा जाता है। तो ये सर कैसे मतलब हम चेक कर सकते हैं, कैसे जैसे इसका प्रूफ है लॉजिकल कि एम्पटी सेट का। हाँ सर, मैं डिफाइन करने बताता हूँ। जी सर। कि हम जब और को देखिएगा, अरे हाँ हम लेते हैं, हमारा अपर बाउंड डिफाइन करते हैं, ए रियल कैपिटल एम इज कॉल्ड अपर बाउंड इफ एवरी एलिमेंट ऑफ दैट सेट इज लेस देन 6। तो फाइव के पास ऐसा कोई आप एलिमेंट दे। जी सर। हमने कहा -1 हम कैपिटल एम लें, तो आप क्या? जी सर। है तो -1 इसके पास कोई ऐसा एलिमेंट है जो -1 से बड़ा है। हाँ सर, अपर बनेगा जब हर एक एलिमेंट को से वो बड़ा हो। तो हमारे पास आई के पास कोई ऐसा बड़ा। सिमिलरली हम एम को -2 ले लें तब भी यही कंडीशन सेटिस्फाई। -3 -4 यानी कि एवरी रियल नंबर इज अपर बाउंड। जी सर। जी सर। पूरी टोटल रियल नंबर, हर एक रियल नंबर वो अपर बाउंड हो गया। तो का इनफिमम लीजिए, रियल नंबर का इनफिमम क्या होगा? -इंफिनिटी। यस सर। समझ गए? तो
हम सुप्रीमम की डेफिनेशन ही, हाँ सुप्रीमम की डेफिनेशन, सुप्रीमम ऑफ द फाइव कैसे कैसे लिखेंगे, इनफिमम ऑफ द अपर बाउंड, इनफिमम ऑफ द It will be minus पूरे ऑफ द रियल नंबर क्या होगा, yes sir, yes sir. माइनस इन्फिनिटी, और उसको क्या कहेंगे, प्लस इन्फिनिटी कैसे हो जाएगा, इनफिमम हर एक वो सुप्रीमम ऑफ ऐसा एलिमेंट, हाँ जी सर, यस सर, इट इज क्लियर नाउ। सर एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि सर जैसे कि कंप्लीटनेस एक्सियम कहती है कि कोई सेट यदि बाउंडेड अबव है तो उसके पास एक लिस्ट अपर बाउंड मिलेगा, तो सर कोई ऐसा बाउंडेड सेट मिल सकता है क्या, बाउंडेड अबव सेट जिसके पास लिस्ट अपर बाउंड ना मिले, मतलब सुप्रीमम ना मिले, मिलता है क्या? तो कैसे हम उस सेट को कंसीडर, मतलब कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे? जैसे रियल नंबर के केस में तो नहीं मिलेगा, बट इन केस ऑफ सर, इज देयर एनी सेट एग्जिस्ट जिनका मतलब जो बाउंडेड अबव हो और जिसका सुप्रीमम न एग्जिस्ट करता हो? You take empty set. बाउंडेड वो तो हो जाएगा सर। क्यू में कोई मतलब ऐसा सेट मिलता है क्या क्यू के केस में? जैसे Shashank, what is your exact question? Sir, my exact question is this: is there any sequence or we can consider sequence or any set? ऐसा कोई सेट मिलेगा क्या जो कि बाउंडेड अबव हो बट उसके पास सुप्रीमम ना हो? सीक्वेंस भी सर कंसिडर, सर सीक्वेंस या सेट कुछ ऐसा सुप्रीमम ना होने का मतलब है उस मिले ना, जैसे कि उस सेट में ना मिले, उस सेट में ना हो या मिले ही, मतलब कोई उसका रियल नंबर सुप्रीमम ना मिल पाए। हाँ सर, रियल नंबर सर क्या मतलब, रियल नंबर के केस में तो पॉसिबल नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारी कंप्लीटनेस एक्सियम ही कहती है कि सेट मतलब उसका सबसेट होगा, मे बी सबसेट ऑफ रियल नंबर हो। हाँ सर, जैसे क्यू में कोई सेट ले सकते हैं क्या, कोई क्यू में कोई सेट कंसीडर करें, या फिर सीक्वेंस के केस में हम जाते हैं तो कोई ऐसा सीक्वेंस कंसीडर किया जा सकता है क्या क्यू के केस में कि उसका जो मतलब सुप्रीमम बाउंडेड अबव हो सीक्वेंस बट उसका सुप्रीमम ना से उसमें मिले क्यू के सेट में? मेरे दिमाग में तो अभी कुछ नहीं है ऐसा। अब सीक्वेंस के केस में जैसे आप 1/n अगर लेते हैं, एज ए सीक्वेंस या एज ए सेट को, बट जब लेकिन नहीं होगा ये तो नहीं होगा। अच्छा सर, कुछ ऐसे रेशनल नंबर्स पे यदि कन्वर्ज करा दिया जा सकता है? शशांक हेलो जी सर। तुम कंप्लीटनेस किस उसी सेट पे चाह रहे हो या मतलब जैसे आर का सबसेट ले रहे हो उस सबसेट पे कंप्लीटनेस चाह रहे हो? किस सबसेट पे यदि कंप्लीटनेस चाहेंगे तो क्यू कंप्लीट होता नहीं, तो क्या क्यू के केस में ऐसी सीक्वेंसेस मिल सकती हैं क्या? वही मेरा क्वेश्चन है। क्यू के केस में क्या ऐसी सीक्वेंसेस पा जाएंगे हम जो कि बाउंडेड अबव हो बट वो हम है वो उस सेट में सुप्रीमम ना हो ना? हाँ सर, उस सेट में सुप्रीमम ना हो, आज तो रहेगा। Okay, consider a set in Q such that X is that set and X square is less than P, where P is prime. I think इसका सुप्रीमम नहीं होगा, sir. Am I right? Yes, you are right. It is the correct method of constructing such set to in which supreme does not exist. In generally we see in books root 2, x is less than root 2, and x belongs to rational number. Got it. Yes. Less than and greater than irrational and take from rational things. Okay. Well, you can take any prime and construct that set.
you are not going to get any supremum in Q, and I think that is the need we generalize for irrationals also. Okay, sir. Means we have to take a sequence which will converge to some irrational number. No, sir. Okay, bounded above. Yes, always because of density. Something I think 1 plus root 2 देखो by n. देखो ये यस देखो ये तो एक रिजल्ट होता है अगर कोई अल्फा इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ एनी सेट then जी we can always construct a sequence which is converted that point. यस सर. समझ रहे अगर कोई अल्फा है रियल नंबर का है इनफैक्ट सेट में हो या ना हो और वो लिमिट पॉइंट बन रहा है अगर किसी सेट का तो उस सेट से हमेशा हम एक सीक्वेंस पाएंगे बात करेगी आप जो हाँ सर. आप लोग डिस्कस कर रहे हो तो ऑब्वियस है वो तो अगर वो लिमिट पॉइंट कहीं भी मिलेगा तो हमेशा हम सीक्वेंस जैसे आपने पूछा क्या रेशनल नंबर की ऐसी कोई सीक्वेंस मिलेगी जो इरेशनल पे कन्वर्ट करके ऑफ कोर्स क्योंकि एवरी इरेशनल नंबर इज द लिमिट पॉइंट ऑफ द रेशनल फॉर द रेशनल नंबर so we can Yes. always construct a sequence in Q which is converted to irrational number. ओके सर. अशोक सर. हाँ बोलिए अशोक सर आवाज जा रही है हमारी? बोलिए हाँ सुन रहा हूँ मैं सुन रहा हूँ. अजय कुमार का क्वेश्चन है कि व्हाट आर द करंट मेजर टॉपिक इन टोपोलॉजी फॉर रिसर्च? करंट मैं देखिए दरअसल मैं टोपोलॉजी का कोई मैं रिसर्च नहीं कर रहा हूँ मैं करंट में नहीं बता सकता ज़्यादा और मैं डिफरेंशियल ज्योमेट्री में मैं रिसर्च जैसे प्रिंसिपल ज्योमेट्री पे कर रहा हूँ उसमें यूज होती है टोपोलॉजी और तो हम लोगों को जनरल टोपोलॉजी के भी इंटरेस्टेड है तो सारे होंगे बट कोई भी टॉपिक लगता है हर एक टॉपिक रिसर्च से ही तो कहीं भी कंप्लीटनेस पे है या फिर और भी तमाम सारे जो आपके कनेक्टेड है कॉम्प्लेक्स होंगे और रिसर्च तो चल ही रही होगी कहीं ना कहीं मुझे एग्जैक्ट ओके सर. सो आशीष. Yes, sir. सो आई थिंक स्टॉप किया जाए मीटिंग. सर यस सर. मैं पूछना चाहूंगा जैसे टोपोलॉजी की बात आ गई तो भी जैसे अशोक सर बात कर रहे हैं तो एक मतलब एक हल्का आइडिया एक बताना चाहे तो बता सकते हैं. If you want to, अशोक सर. हेलो हाँ आवाज आ रहा हमको लगा दिक्कत होने लगा क्या आवाज कट के हमको भी आने लगी. आवाज आ रही है आपकी तो जैसे मतलब आप जिस टॉपिक में रिसर्च कर रहे हैं एक हल्का आशीष की आवाज ज्यादा गड़बड़. हेलो आवाज आ रही है? हाँ क्या पूछा हम जिस हाँ सर जैसे आपकी जो फील्ड है आप थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन. हाँ तो उस पे मुझे जानना चाहिए हाँ क्या मतलब चल रहा है. एक रफ आइडिया जी. रिसर्च एरिया जो हमारा है स्पेशल ज्योमेट्री ओके हाँ रफ आइडिया बता रहा जैसे हमारा टॉपिक आप अपने आप पहले आपको म्यूट करिए पहले. कर्वेचर एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है कर्वेचर. दूसरा क्या आइसोमेट्रिक भी लोग डिफरेंशियल ज्योमेट्री जो है रिमेनिंग ज्योमेट्री में भी काम कर रहे हैं उसमें भी कर्वेचर में भी बातचीत कर रहे हैं फ्लैग कर्वेचर वगैरह हो गया.
और एक आइसोमेट्री भी हो गया, और कई सारे से हाइजेनबर्ग ग्रुप भी है, उसको लेकर के रख करते हैं कि उसमें जो बाई वेरिएंट इन वेरिएंट, ये हालांकि नेक्स्ट टर्म है, बाई वेरिएंट इन वेरिएंट पेपर पढ़ा, उसमें कोई स्पेस लेते हैं तो उसमें एक जियोडेसिक की भी बात करते हैं। जियोडेसिक मीन्स दैट आप ऐसे अगर रियल लाइन में बात करेंगे, सॉरी रियल आरएन में बात करेंगे तो आपको एक लाइन मिलने वाली है। अगर यूजुअल सेंस में बात करेंगे जियोडेसिक, तो अगर बस आप स्फीयर पे बात करेंगे, हाइपरबोलिक स्पेस में बात करेंगे, तो आपको किन्हीं दो पॉइंट के बीच में मिनिमम डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो आपको अगर गोले पे फाइंड आउट करोगे तो एक वक्र बनेगा, यानी कि एक डाया वो मिलेगा ऐसा, जो नॉर्थ पोल साउथ पोल यानी कि अपोजिट पोल से जाता हुआ एक सर्कल, ग्रेट सर्कल जिसे बोलते हैं, वो जियोडेसिक मिलेगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं दो पॉइंट के बीच में हमें हमेशा जियोडेसिक यानी कि मिनिमल डिस्टेंस जो होनी चाहिए लाइन हो, ऐसा नहीं। तो जियोडेसिक फाइंड आउट करना, आइसोमेट्रिक कौन कौन स्पेसेस हैं इस पे भी बातचीत करते हैं, कर्वेचर फाइंड आउट करना, और कर्वेचर के भी अपने टाइप बहुत सारे होते हैं। में जब आते हैं फ्लैग कर्वेचर, सेक्शनल कर्वेचर है, टाइप ऑफ कर्वेचर भी हो जाए, तो ज्योमेट्री में इस तरीके से भी काम करते हैं, और आइसोमेट्री पे भी काम करते हैं, जियोडेसिक पे भी काम करते हैं, या नया स्पेस कंस्ट्रक्ट या फ्लैग कर्वेचर जिसे हमारे वहाँ आ जाता है। तो इस तरीके से आप डिस्कस करते हैं, और भी चीज़ें हैं डिफरेंट डिफरेंट, हमने वो अभी स्टार्ट ही किया है। Okay, sir. Thank you. Shashank, I think, sir. हेलो हेलो अशोक सर। Yes, someone is asking question. सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो बेयर्स कैटेगरी थ्योरम होते हैं, तो बेयर्स कैटेगरी थ्योरम के अंदर हम एक्स कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस लेते हैं, तो कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस की जगह कॉम्पैक्टनेस अगर लेके चले तो क्या वो डेफिनेशन होल्ड करेगी बेयर्स कैटेगरी थ्योरम स्टेटमेंट? नहीं कह सकते, अगर कंपेयर तो हम लोग इन जनरल मतलब ये अनफोल्ड करिए, उसमें कंप्लीटनेस की आप जब प्रूफ में जाएंगे ना तो उसमें कंप्लीटनेस की जरूरत पड़ती है। हम ऐसा तो नहीं कर सकते कम्पैक्ट है, जब यहाँ तो सही है, आ रहे सही है ना? तो उसका जब हम प्रूफ करते हैं, तो मैंने एक दो बार किया तो वहाँ कंप्लीटनेस की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए उसको कंप्लीट होना जरूरी है। हेलो आकाश जी, आपके क्वेश्चन में आप कह रहे हैं कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस इन जनरल एक जो डेफिनेशन है कि आप मैट्रिक स्पेस इज कॉम्पैक्ट इफ एंड ओनली इफ इट इज टोटली बाउंडेड एंड कंप्लीट। सो कंप्लीट से ज्यादा कंडीशन आप डिमांड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो वहाँ होल्ड ही करेगा ये थ्योरम। मेरा क्वेश्चन इज दैट कंप्लीट, हेलो तो हमारा ये बोला है कि क्या कॉम्पैक्टनेस इज सफिशिएंट फॉर द कंप्लीटनेस इन द, देखो ये बीच का है, अगर हम वहां तक पूछे तो आपको सही आंसर देते तो डाउटफुल है तो नहीं करो, आगे समय आएगा बताया जाएगा। यस Okay, sir. Thank you, sir. I think now, हेलो हेलो अशोक सर। yes. हेलो सर, मेरा क्वेश्चन, हाँ जी, hello sir. Sir, I want to ask a question related to research. Sir, I want to research in topology, and I'm searching a current major topic for doing research, but I'm not able to get any other of them. So would you help me how I can find such a topic which is fruitful for me in my future?
यस सर हेलो नहीं सर एक्चुअली आई एम इंटरेस्टेड एक्चुअली मैंने करंटली अपनी एमएससी कंप्लीट की है सो आई एम ट्राइंग टू फाइंड माय टॉपिक हेल्प कीजिए जैसा कि मैंने बताया ना मैं मेरी रिसर्च एक्चुअली में टोपोलॉजी में नहीं है मेरी रिसर्च डिफरेंशियल ज्योमेट्री में है डिफरेंशियल वो भी सब मैनिफोल्ड है ना तो उधर का रहता है जो बाद बाकी रिसर्च तो अपने आप में